जहां पर हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, एलोपैथिक अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं। वहां पर आप जो हम इस सेगमेंट में बात करेंगे कि होम्योपैथिक में क्या हो रहा है, आज उस पर बात करेंगे। सो हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स मौजूद हैं उनको वेलकम करते हैं शो में। डॉक्टर तारा सिंह आलम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि माहिर होम्योपैथी हैं, किताबों के मुसन्निफ भी हैं, शायर भी हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर तारा सिंह आलम साहब। और साथ साथ मेरे साथ हकीम राहत नसीम सोहदरवी भी हैं, जो कि मेंबर हैं नेशनल काउंसिल फॉर तिब हुकूमत पाकिस्तान। आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया हकीम राहत नसीम साहब। तो सबसे पहले डॉक्टर तारा सिंह आलम साहब, ये जो हमारे यहाँ सूरत हाल है, सारी दुनिया में कोरोना फैला है, क्यों आया, कैसे आया और इंसानों तक कैसे मुंतकिल हुआ? अभी भी हम कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिस पर हमें सोचना है? हाँ जी, पहला तो सारे 92 चैनल देखने वाले दर्शकों ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। हाँ जी, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਪੈਥਿਕ ਮਾਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਰਤ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਿਆਦ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨੇ ਫਾਸਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਫਰਟਸ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਾਪੂਲਰ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਵੇ, ਫੀਵਰ ਹੋਵੇ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਐਲਬਮ 30, ਬੈਲਾਡੋਨਾ 30, ਰਸਟੌਕਸ 30, ਪਾਇਰੋਜੈਨਮ 30। ਇਹ 4 ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 5-5 ਬੂੰਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਲੂਐਂਜੀਨਮ 200 ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਅਕਿਊਟ ਕੇਸਿਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਰ ਟਿੰਚਰਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕੋਨਾਈਟ ਮਦਰ ਟਿੰਚਰ, ਬੈਲਾਡੋਨਾ ਮਦਰ ਟਿੰਚਰ, ਬੈਪਟੇਸ਼ੀਆ ਮਦਰ ਟਿੰਚਰ, ਯੂਪਟੋਰੀਅਮ ਪਰਫ ਮਦਰ ਟਿੰਚਰ, ਇਚੀਨੇਸ਼ੀਆ ਮਦਰ ਟਿੰਚਰ ਐਂਡ ਗਲੀਚੋਮਾ ਮਦਰ ਟਿੰਚਰ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਇਰਸ, ਇਹਦਾ ਹਊਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਚੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੰਗਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਜਵਾਬ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡੇਲੀਆ ਮਦਰ ਟਿੰਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾ ਸਕੋ, ਉਹ ਹਰੀਆਂ सब्जियां ਧੋ के चंगी तरह सवार के वो खानी चाहिए। एहतियात करें और हेल्दी डाइट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि अभी डॉक्टर तारा सिंह साहब ने भी बताया। हाँ जी। हकीम राहत नसीम साहब की तरफ बढ़ रही हूँ। हकीम साहब, ये जो अभी सूरत हाल है, ईस्टर्न मेडिसिन इसमें क्या कह रही है और अभी इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आप लोगों की क्या राय है इस पर? रिमशा, बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया जी कि मैं तिब्बे यूनानी की नुमाइंदे की हैसियत से
तिब का केस मीडिया के ज़रिए आवाम और हुकूमत के ईवानों में पेश कर सकूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि तिब्ब यूनानी, जिसे ईस्टर्न मेडिसिन का भी नाम दिया जाता है, ये दुनिया का सबसे कदीम तरीन तरीका इलाज है और ये हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन भी कहलाती है। आलमी इदारा सेहत ये करार दे चुका है कि दुनिया भर के अफ्रीशियाई ममालिक उस वक़्त तक अपने मसाइल सेहत हल नहीं कर सकते जब तक कि वो अपनी सेहत पॉलिसियों के अंदर अपने ममालिक की रवायती तिब्बों को शामिल नहीं करेंगी। तो देखिए, ये बात तो अब साबित हो चुकी कि जदीद मेडिकल साइंस कोरोना के हवाले से फ़ेल हो चुकी। आज दुनिया के वो तमाम ममालिक जो साइंसी तरक्कियों का दावा करते थे और कहा करते थे कि मेडिकल साइंस ने अपनी आखिरी हदों को छू लिया है, लेकिन ये साबित हो गया कि एक वायरस के नतीजे में पूरी दुनिया अफरा तफरी का शिकार हो गई और मेडिकल साइंस नाकाम हो गई। लेकिन इसके मद्दे मुकाबल हमारी रवायती तिब्बों के अंदर ये पहले से वबाई इमराज का चैप्टर मौजूद है। हमारे तिबिया कॉलेज के सिलेबस के अंदर मुतद्दी इमराज, यानी कि वो इमराज जो फैलते हैं, वबाई हैं, इन्फेक्शंस हैं, इनको एक चैप्टर के तौर पे पढ़ाया जाता है। लेकिन बदकिस्मती ये कि हमारी बावजूद अपीलों के और हमारी दरखास्तों के हमें इस सिलसिले में कोई रोल नहीं दिया गया। देखिए, अभी चाइना के अंदर इस कोरोना वायरस का आगाज़ हुआ तो वहाँ अब उसके बाद उन्होंने वहाँ पर पेपर शाया किया कि उन्होंने कोरोना पर किस तरीके से कंट्रोल किया। उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि हमने अपनी रवायती तिब्बों से इस्तेफ़ादा किया और चाइना का जो रिसर्च जर्नल है ट्रेडिशनल मेडिसिन के हवाले से, उसमें उन्होंने पूरी इसकी तारीख दी और ये बताया है कि उन्होंने अपनी मकामी जड़ी बूटियों से इलाज किया। पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्टरों का वफद आया चाइना से और उसने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के अंदर डॉक्टरों को ब्रीफिंग दी, जहां उसने ये बताया कि ये वायरस कैसे फैलता है, इसे कैसे रोका जा सकता है। वहाँ उन्होंने तीसरे मरहले के अंदर ये भी बताया कि हमने वहाँ पर बादियान, हताई, दारचीनी, अदरक और 2-3 और नबाताती अज्जा पर नुस्खे का इस्तेमाल भी किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी तिब के अंदर बीमारी उस वक़्त जन्म लेती है जब किसी भी इंसान की कुव्वत मदबरा बदन कम हो जाती है, जिसे हम जदीद इस्तिलाह के अंदर इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो इम्यून सिस्टम को हमें बूस्ट करना होगा। अगर हम ये करते हैं तो हम इन वबाओं पर काबू पा सकते हैं। देखिए, ये जो वबाएं हैं, किस तरीके से इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जा सकता है, दोनों से यही सवाल है। पहले डॉक्टर तारा सिंह साहब से पूछ लेते हैं, फिर आपसे भी पूछूंगी हकीम राज साहब। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की बड़ी बात हुई, डॉक्टर तारा सिंह साहब, आपकी नज़र में कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो? देखिए, जो इम्यून सिस्टम, जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं ना, एक्चुअली वो आपकी सोल है, वो आपकी जो जिसको बोलते हैं एनर्जी जो आपके अंदर काम करती है ना। हम अल्लाह की रहमत से उसके उस रब की रहमत से हमें सबसे ज़्यादा मेडिटेशन करनी चाहिए, सबसे ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए, जिससे आपका इम्यून सिस्टम, आपकी जो सोल मजबूत हो सके। अगर आप रिसीव ही नहीं करते किसी चीज़ को, किसी फूड को, किसी दवाई को, आपकी बॉडी, आपकी सोल ने रिसीव करना है। बॉडी तो एक जरिया है, बॉडी एक टूल है। होम्योपैथिक सिस्टम जो है सारे का सारा वो सोल के ऊपर खड़ा है। सबसे बड़ी बात ये है। सो सारे सिस्टम दुनिया के अच्छे हैं, जितने भी सिस्टम हमें हेल्प करें। हमें इस वक्त हमारा जो फ़र्ज़ है वो है कि हमें जो आदमी को मुसीबत आई है उसको निकालना है मुसीबत से। कैसे निकलें? कोई हिस्ट्री, जो जितनी भी हिस्ट्री है ना, जितनी दवाइयों की, वो रिसर्च से बनी है, सारी अच्छी हैं, सब दवाइयाँ दुनिया की अच्छी हैं, सब सिस्टम अच्छे हैं। मगर सबसे बढ़िया बात यह है कि हम इस घड़ी में अपने गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिदों की पहले जो गोलके हैं अपने दिल खोल दें और लोगों की मदद करें। वो पैसे जो जमा मिलियन बिलियन पाउंड जो जमा करके रखे हैं ना अंदर, वो निकालें और लोगों की मदद में डालें। वो दवाइयों पे, हॉस्पिटलों पे लगाएं। सही बात। ये सबसे बड़ी वजह। इम्यून सिस्टम जो है, आपका अंदर का जो मन है, जो आपके अंदर जो सोल है जो बैठी है ना, जो डरी बैठी है डर से, जो डर को निकालें पहले। कोई दुनिया की ताकत नहीं है बड़ी अल्लाह की रहमत से।
सो हम क्यों डरते हैं? हम तो हाथ मिलाने से गए, हम किसी से पहले डिस्टेंस बना दिया, इतनी हमारे अंदर ये बढ़ जाएगी, जो फियर इतना अंदर गहरा चला जाएगा, हम तो नफरत से भर जाएंगे एक दूसरे से, किसी के घर नहीं जाएंगे, किसी के हाथ का खाएंगे नहीं। ये क्या क्या बीमारी है? ये बीमारी मन की है सारी, क्योंकि होम्योपैथिक सिस्टम जो है वो मन के ऊपर ही खड़ा है, बीमारी बाहर तो है ही नहीं कोई। सो इसलिए मेरी गुजारिश है सब लोगों से, दुनिया के सब लोगों से, कि प्लीज़ हम पहले डरना छोड़ दें, हमें उस अल्लाह से जो इक़दाद है हमारा जो फेथ है उसको मजबूत करें। वो ही है करने वाला, वही आपको तंदुरुस्ती देने वाला है, वही बीमारी भी वही भेजता है, ठीक है, मारता भी वही है, रखता भी वही है। तो हम पहले अपने जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम यही है हमारा। हाँ बिल्कुल। तो इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है तो पहले अपनी सोल को मजबूत करने के लिए। रिमशा, पहली बात तो ये है कि कुदरत जो है ना, फितरत, ये वबाई अमराज फितरत की तरफ से आते हैं और फितरत इनका खुद मदावा करती है। ये जो हम इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये कुदरत ने, फितरत ने इंसानी जिस्म के अंदर रखी है बीमारियों से मुकाबला करने के लिए। जब ये कुव्वत कमज़ोर होती है तो बीमारी हमलावर होती है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर कोरोना के हवाले से जो खौफ व हरास फैलाया गया है, उसके नतीजे में आप देखिए कि सबसे पहले आप देखिए कोरोना की फार्मालोजी कि ये कैसे तश्कील पाता है। ये वायरस एक प्रोटीनी लेयर्स के अंदर होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि फैट्स लेयर्स। तो ये जो कहा जाता है कि 20 मिनट तक हाथ धोएं, तो इसके अंदर भी जब हम हाथों को मलते हैं तो इससे वार्म यानी कि हरारत पैदा होती है, और ये जो वायरस है ये 25-26 सेंटीग्रेड पर अमूमी तौर पे तहलील हो जाता है। लेकिन आज खौफ व हरास की सूरत हाल ये है कि देखें, इसके बारे में जो स्टडी आई है वो ये है कि ये फैब्रिक के अंदर 3 घंटे तक, कापर के अंदर 4 घंटे तक, और कार्डबोर्ड के अंदर 24 घंटे तक, मेटल के अंदर 48 घंटे तक, और प्लास्टिक मटेरियल के अंदर 72 घंटे तक ज़िंदा रहता है। तो इसका मतलब ये है कि हम तो कोई काम ही नहीं कर सकते, ना हम कंप्यूटर को हाथ लगा सकते हैं, ना हम दरवाजे को हाथ लगा सकते हैं, ना हम कुर्सी मेज़ पे बैठ सकते हैं, ना चारपाई पे बैठ सकते हैं। तो इससे भी यकीनन इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। तो हमें लोगों का मोराल बुलंद करना चाहिए, लोगों को ये बताना चाहिए कि ये इतना खौफनाक और ख़तरनाक नहीं जिस हद तक ये पेश किया जा रहा है। देखिए, हमारे मुल्कों के अंदर वैसे भी लोगों का इम्यून सिस्टम खासा मजबूत है, और मगरब के मुकाबले के अंदर हमारी सूरत हाल बहुत बेहतर है। आप मुआवजा करें कि पाकिस्तान की हुकूमत के सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हर 12 मिनट के बाद एक हार्ट से मरीज़ जो है वो दुनिया से चला जाता है, यानी 24 घंटे के अंदर तकरीबन 350 पेशेंट। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर 1.5 करोड़ से ज़ायद पेशेंट हेपेटाइटिस के हैं, 1.5 करोड़ से ज़ायद पेशेंट जो हैं वो डायबिटीज़ शुगर के हैं, और अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर 4.25 लाख मरीज़ हर साल नज़ले ज़ुकाम की वजह से जान की बाजी हार जाते हैं। तो यूँ हम ये समझ सकते हैं कि ये उनके मद्दे मुकाबल ये इतना बड़ा मसला नहीं जिसे बनाकर इसे पेश किया गया है। लेकिन इसके बावजूद हम इससे इनकार नहीं करते, यकीनन ये मर्ज़ है, और वबाई मर्ज़ें हमेशा से आती रहीं, इससे पहले भी ये आती रहीं, और तिब की किताबों में इनका जिक्र भी मौजूद है, और कुदरत इनका खुद मुदावा भी करती है। मैं ये समझता हूँ कि ये अमूमी तौर पर जब मौसम सरमा मौसम गर्मा की तरफ जाता है और दरमियान के अंदर बारिशों का सिलसिला शुरू होता है, तो अमूमी तौर पर जब फ़ज़ा मुतफ़न हो जाती है, पोलूट हो जाती है पोल्यूशन की वजह से, तो इसके नतीजे के अंदर ये जरासीम और वायरसेस जन्म लेते हैं। लेकिन जब बारिशों के बाद मौसम के अंदर शिद्दत की गर्मी आती है, जैसे कि अभी बारिशों के बाद धूप शुरू हो रही है, तो ये वायरसेस और ये जरासीम आज खुद ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, अभी हमने कहा कि ये 20 मिनट तक हाथ धोएं, तो इसके नतीजे में जब हम करते हैं तो हमारे हाथ वार्म अप होते हैं, गर्म होते हैं। इस हरारत से भी ये प्रोटीनी लेज़र के अंदर ये तहलील होता है। अभी हम इसके लिए हमें सूरज की शुआओं से भी इस्तेफादा करना चाहिए। सिंह साहब,
ये जो सूरत हाल है इसमें हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं, तरह तरह के तरीका इलाज बताए जा रहे हैं कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो आप इससे बच सकते हैं। आप कुछ बताएंगे लोगों को कि किस तरीके से कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे किचन में मौजूद हो, या कोई और आपके पास तरीका? मेरी गुजारिश है उस रब दी रहमत नाल सारे मीडिया नूं, सोशल मीडिया ते जिवें तुहाडा टैलीविजन, मैं तो पहला इत्थे आ भी चुके हैं, बड़ा बैलेंस तुहाडा काम है, बहुत वधिया गल है। पर मेरी एक गुजारिश है बार बार कि असी इहदे डिटेल विच इहदी गिणती ना दसीए लोकां नूं, आम लोकां नूं। इहदे नाल लोक डरदे है, बहुत डर पैदा लोकां दे विच भी हुण इत्थे इन्नियां मौतां हो गईयां, इन्नियां हो जांदियां मौतां, ये इन्नी देर रहिंदा फलानी चीज़ 'च। एक ये लोकां नूं लोड़ नहीं दी है, ये लोड़ किसी एक्सपर्ट नूं होगी, किसी ने लैक्चर देना जाके उन्होंने होगी। सानूं तां लोड़ इस गल दी असीं बचना किवें तो बचाओ लई साडे कोले इहदे लई जिवें सिंपल जिहड़ियां चीज़ां, ये गर्म पानी बार बार पीता जावे, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੈਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੈ ਬਈ ਦਾਲਚੀਨੀ ਤੇ ਅਦਰਕ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਦਰਕ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹਨੇਰੀਆਂ, ਤੂਫਾਨ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਣਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਮਝਦਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਗਾ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਡਰੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ, ਜਗਾ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਡਰੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਧਰਮੀ ਲੇਖਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਭਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤਦਵੀਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਡਰ ਨਾਲ ਧਰਮ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਮੁੱਕ ਜੇ, ਤੇਰੇ ਡਰ ਨਾਲ ਧਰਮ ਜਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਮੁੱਕ ਜੇ, ਰੰਗ ਨਸਲ ਤੇ ਈਰਖਾ ਵਾਲੀ ਮਨ ਚੋਂ ਫਿਤਰਤ ਮੁੱਕ ਜੇ, ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਜੀਵਨ ਹੀਰਾ ਹੀਰਾ ਹੋ ਜਾਊ ਲੀਰਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੇ ਲੀਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਾਟ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤੰਗ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਚੰਗਾ ਲਿਟਰੇਚਰ पढ़िए, चंगा सुनिए। तो मेरी गुजारिश ये है कि जैसे कि अभी तारा सिंह साहब ने भी कहा कि अब जो आगे वक्त आ रहा है ये और ज़्यादा मुश्किल है, हालात ख़राब हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, केसेस में भी इजाफा हो रहा है, कोरोना से मुताल्लिक भी सूरत हाल तशवीशनाक है। तो हम सब क्या कर सकते हैं इस वक्त इस सूरत हाल में और इन हालात में, आप क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुआलज हाँ उसका तल्लक किसी भी तरीका इलाज के साथ हो, उसका बुनियादी मकसद है इंसान की शफा। हम जदीद मेडिकल साइंस के मुखालिफ नहीं, हम समझते हैं कि तमाम तरीका है इलाज के लोगों को मिलजुल कर इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए और कौम को इस बहरान से निकालने के लिए सबको इसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो अभी जो बात हुई, जैसे कि सरदार साहब ने भी कहा और आजकल यही हर जगह मौजूद बहस है सोशल मीडिया पर भी, कि असल बात है कि लोगों की क़ुव्वत मदाफ़ियत को मजबूत किया जाए, तो यकीनन इसके नतीजे के अंदर ये वबा भी कम होगी और इमराज से हम जंग भी लड़ेंगे। देखिए, तिब जो है ये बेसिकली फितरी तरीका इलाज है और नबातात एन फितरत है और फितरत के साय में ही इंसान के लिए आफियत है। फितरत से इंसान जंग जीता और ना जीत सकता है। फितरत से जंग इंसान के लिए हमेशा खसारे का बायस रहेगी। तो मैं इस सिलसिले में 2-3 चीज़ें पेश करता हूँ कि जो लोगों को अपना इम्यून सिस्टम, मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए अपने घरों के अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए।
इसके लिए बादाम, मगज़ बादाम और लहसुन, दाना इलायची सब्ज़ और शहद की पेस्ट बनाकर रोज़ाना 1 चम्मच का इस्तेमाल क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मज़बूत बनाता है। इसके अलावा एक और भी तदबीर है, वो है कि 100 ग्राम सफ़ेद चने लिए जाएं और इनके अंदर लेमू, लहसुन और अदरक का पानी 1-1 चम्मच डालकर और 1 अंडा मिलाकर इसको शामी कबाब की सूरत में बनाकर खाया जाए तो ये भी इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। जब किसी भी इंसान के अंदर उसका इम्यून सिस्टम, जिसे हम मदाफ़ती निज़ाम भी कहते हैं या तिब की ज़बान में क़ुव्वत मुदब्बरा बदन कहते हैं, जो फितरत ने इंसान के अंदर रखे है, जिसे जदीद इस्तिलाह के अंदर एंटीबॉडी कहा जाता है, जब ये कमज़ोर होती है तो बीमारी हमला करती है। तो हम समझते हैं कि अगर हम इसको मजबूत करें, लोग अपना तर्ज ज़िंदगी नेचर के करीब करें, तो ना सिर्फ हम इमराज से बच सकते हैं बल्कि मुल्क की मसला सेहत में भी हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं। मैंने बहिसत मुआलज अपने मतलब के तजुर्बात और मुशाहदात में ये बात देखा कि गुज़श्ता 2 अशरों के दरमियान इमराज की इंतहाई शिद्दत हुई। आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर हर दूसरे घर के अंदर हेपेटाइटिस, कोलेस्ट्रोल, ब्लड प्रेशर, शुगर और इमराज कल्ब का कोई ना कोई मरीज मौजूद है। बढ़ती जा रही अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इमराज क्यों बढ़े? लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा हकीम राहत साहब, लाइफस्टाइल तब्दील करने की जरूरत है क्योंकि दीगर अमराज भी बढ़ते जा रहे हैं। तारा सिंह साहब, ये लाइफस्टाइल चेंज कैसे हो सकता है और इसमें हमें किस हद तक तब्दीली लेकर आनी है ताकि हम ना सिर्फ कोरोना बल्कि दीगर बीमारियों से भी महफूज रहें? बिल्कुल, लाइफस्टाइल चेंज करना सिंपल गल है जी। जिन्ने स्वाद हैगे है, ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਚਨ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਦਾਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਦੇ। ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 100 ਟਾਈਮ ਹੈਲਦੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਹੈਲਦੀ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਚਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਲੜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਨਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਨਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਕਦੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਚੰਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਚੜੇ, ਮੰਗਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ, ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੋਕ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਦੀਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਦੀਬ ਹੀ ਵਿਕ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸੁਧਰ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਧਰ ਜਾਣ। ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ नहीं कर सकती? बिल्कुल ऐसा ही। देखिए ना, हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है और यही वक्त की जरूरत है, क्योंकि अगर हम अपना तौर तरीका नहीं बदलेंगे तो इस तरह बीमारियां आती रहेंगी, हमारे लिए बहुत चैलेंजेस होते रहेंगे। तो हमें अपनी जिंदगी में बेहतरी लाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारा सिंह साहब हमारे साथ मौजूद थे। हकीम राहत ने वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अल्लाह ने के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान।